Hello class 4th, a warm welcome you all in your English class. I hope you all are great and greetings from my side as well. I hope बच्चों आप अपने previous chapter को अच्छे से revise कर रहे होंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं chapter number 16, A Family on the Roof. Chapter 16, A Family on the Roof. One evening, एक शाम, my mother called me excitedly from the balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the eight creepers on the roof or a patio. I thought it could be a snake's egg. Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Did it occur to me that it could be a peahen's egg? There were many in our neighborhood. अब क्या होता है बच्चों, एक शाम की बात है कि मम्मी बहुत एक्साइटेडली उन्होंने मुझे बालकनी में बुलाया. मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट किया कि वो देखो वो एग कैसा है जो एक एंड टू एंड क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ अवर पेशियो. ओके, उनके रूफ पे बच्चों, पेशियो के रूफ पे वो एग था. तो मुझे लगा कि वो एग अंडे का होगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अंडे का एग तो इतना बड़ा नहीं होता है, तो मुझे लगा कि वो मुर्गी का एग है. वैसे भी हमारे नेबरहुड में बहुत सारी मुर्गियां रहती हैं. The next morning, my mother told me that she had spotted another egg. Wonderful news! This meant we had a regular visitor. I have always longed for a pet. Now I was lucky to own one. Okay, so अगली सुबह उसकी मम्मी बोलती है कि आज फिर से मैंने एक दूसरा अंडा देखा. तब मैं बोलता हूँ, वो लड़का बोलता है कि वाह कितनी अच्छी खुशखबरी है, मुझे लगता है कि हमारा कोई नया पेट आ रहा है. वैसे भी मुझे हमेशा से एक पेट एनिमल चाहिए था, सो अब मैं उसे अपना पेट बना लूंगा, ऐसा वो सोचता है. The next morning I noticed another egg and I was sure of our friend's intention. She had decided to make our roof her home. I was overjoyed. I repeatedly counted the eggs. अगली सुबह मैंने देखा कि वहां एक और अंडा था. अब मैं श्योर हो गया कि जो हमारे नए फ्रेंड्स की इंटेंशन है वो कुछ ऐसी है कि उसने हमारी छत को ही अपना घर बना लिया है, और मैं बहुत ज्यादा खुश था. The following days was the most memorable. There were 4 eggs. अब क्या हुआ, अब आने वाले दिनों में कितने अंडे हो गए टोटल बच्चों? 4. यानी पहले दिन 1, दूसरे, तीसरे 4, अब 4 अंडे हो गए. The next morning I finally saw the peahen. I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. Here you can see girl is watching. What watching? उसने देखा कि अंडे है और peahen है, और वो क्या कर रहा है बच्चों? वो ग्रेन खा रहा है. बच्चों पीहन मतलब सॉरी मुर्गी नहीं होता, पीहन मतलब मोरनी होता है, माय मिस्टेक. हैन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा, एंड व्हेन वी से पीहन और पीकॉक, सो पीकॉक मतलब मोर, और पीहन मतलब बच्चों होती है मोरनी, जो फीमेल मोर होती है. सो अब क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं गर्ल जो है वो दाने डाल रही है, और जो पीहन है, जो मोरनी है, वो दानों को चुग रही है. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. और अब मुझे टोटल 21 दिन इंतजार करना है जब वो अंडे हैच होंगे, जब वो अंडे फूटेंगे. It had become a daily ritual to watch the mother bird. अब ये डेली की मेरी एक हैबिट बन गई थी कि मुझे सुबह उठ के अब उन मदर को और उनके एग को देखना है, यानी पीहन और उनके एग को देखना. I didn't see her moving an inch in spite of sun. On some days it rained heavily and I was sure the bird was cold too. Though it's nice to have some showers, especially in hot season for the mother hen, it was so. My mother told me that the peahen went away some times in the night. There were some cats in the vicinity and I dared the thought that they might snatch the eggs. उसकी मम्मी बोलती है कि कभी कभी जो पीहन है वो रात में कहीं चली जाती है और हमारे अगल बगल कुछ बिल्लियां रहती हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वो बिल्लियां उसके अंडे को खा ना जाएं.
Every morning I would go and take a look at the peahen. A fortnight later, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw. A cat was scurrying away with an egg in its mouth. I shrieked at it, and in the hullabaloo, it dropped the egg. I felt very sad looking at the contents of the broken egg. I hope that this was not happen again. The peahen continued to visit without losing hope. One afternoon, I heard my mother calling out to me. I ran upstairs. I saw tiny whiny chick next to his mother. Okay, तो वो छत पे रहती है तो वो अंडे जब फूटते रहते हैं उसमें से जब चिक निकलती रहती है तो वो घबरा जाती है. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मम्मी देखती है कि मुर्गी के सॉरी पीहन के बच्चे हो चुके हैं, चिक हो चुके हैं, तब वो बहुत ज्यादा खुश होती है. I ran it to get camera, and just at the moment the peahen got up and another beastie chick was there. और जब मैं अगली सुबह देखती हूँ तो एक अंडा और हैच हो चुका रहता है, एक अंडे से और बच्चों चिक निकल चुकी होती है. सो दे फॉलोड देयर मदर्स, वो अपने मदर्स को फॉलो करती है. वो कैसे लग रही थी? वो एकदम ही पीहन जैसी लग रही थी और वो अपनी मम्मी के साथ फ्लू कर जाती है ग्राउंड पे. One chick followed. I just stared at taking the flight from the balcony. और वो हमेशा अपनी बालकनी से, आप देख सकते हो ना बच्चों, वो फोटो भी खींच रही है पिक्चर में, तो वो हमेशा बालकनी में चीजें देखती थी कि ये सारी चीजें हो रही हैं. आप देख रहे हो ना कैसे कैसे करके एक एक अंडा वो फूटते देखती थी, उसमें से चिक को निकलते देखती थी. It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? The mother peahen flew back and again and flew down once again. The other chick was just standing on the edge followed. We all were looking at them wondering how they would fly back again. Peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. I asked my mother how the minute's old chick could fly from such a height. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. ठीक है. अब क्या हुआ, उसने देखा कि धीरे धीरे जब पीहन उड़ती थी तो उसके पीछे पीछे चिक भी उड़ जाते थे, फिर ऐसे करते करते फिर से वो वापस आ जाते थे, फिर से उड़ते थे. तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये चिक तो अभी छोटे हैं तो ये इतने ऊंचे कैसे उड़ सकते हैं. तो मम्मा स्माइल करती है, वो बोलती है कि वो अपनी मम्मी पे भरोसा करते हैं, तो जो पीहन होती है उनको जैसा सिखाते हैं बच्चे उनको वैसा ही फॉलो करते हैं. रिटन बाय लक्ष्मी भवानी. दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी माय डियर लर्नर, वेरी इमोशनल स्टोरी. आप भी बच्चों से स्टोरी से ये सीख सकते हो कि जैसे हमारी पेरेंट्स हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारी मम्मी हमारा कितना ख्याल रखती है ना, वैसे भी जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, एनिमल्स में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. सो द चैप्टर एंड्स हियर. नाउ आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. व्हाट यू हैव टू डू एज अ होमवर्क, you have to point out the difficult word from the chapter and learn them, and learn also their spellings as well. Take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.